Hello and welcome to the first session on Pharmacy Act 1948. In this session, we will be discussing about the various objectives behind implementing this act, definitions, Constitution of Pharmacy Council of India, and its functions. As we all know that there was no strict control over pharmacy profession prior independence. Many people who weren't qualified or who weren't registered as a pharmacist used to dispense medication. This led to agitation. Hence, Drug Enquiry Committee suggested formation of Pharmacy Council of India and State Pharmacy Council of India to curb such ongoings. Pharmacy Council of India and State Pharmacy Council of India were formed in order to bring about a control over illegal activities as well as to educate people and to register qualified people as a pharmacist. The main objective behind this act was to regulate the profession and practice of pharmacy and to raise the status of profession of pharmacy in India. Keeping in this Keeping in mind all these objectives, Pharmacy Act was implemented in March 1948. We will be looking at the definitions now. First one is registered pharmacist. He is a person whose name for the time being is entered in the register of pharmacists of a state in which he for the time being is residing or carrying on his profession or business of pharmacy. रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो होता है जिसका नाम किसी स्टेट फार्मेसी रजिस्टर में एंटर हो और वो उसी स्टेट में फार्मेसी का बिजनेस माने मेडिकल स्टोर हो, होलसेल स्टोर हो मेडिकल का, वो बिजनेस कैरी आउट करता रहे। डिस्प्लेस पर्सन जिसे हम विस्थापित व्यक्ति भी कहते हैं, उसकी डेफिनेशन देखिए। A person who on account of setting up of dominions of India and Pakistan on account of the civil disturbances or the fear of such disturbances in area now forming a part of Pakistan has left or after the first day of March 1947 he has left or has been displaced from his place of residence in such area and who has since then been residing in India. Displaced person को हम विस्थापित व्यक्ति या सीधे शब्दों में कहें तो रेफ्यूजी कहते हैं। वो व्यक्ति अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब दंगे हुए थे, जब बंटवारा हुआ था, वो टाइम पे अगर उसने उसका रहने की जो एरिया थी जहाँ पे वो रहता था वो एरिया छोड़ के भारत में स्थलांतरित किया हो तो उस व्यक्ति को हम डिस्प्लेस पर्सन कहेंगे। ध्यान रखिएगा जब इंडिया और पाकिस्तान की बात आएगी तो डेट आपको ये लिखनी है ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान के एरिया से इंडिया में आया हो और तब से इंडिया में ही रह रहा हो उसे हम डिस्प्लेस पर्सन कहेंगे। बात जब इंडिया और बांग्लादेश की आएगी तब आपने ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी। एनी पर्सन who on account of civil disturbances or fear of such disturbances in any area now forming a part of Bangladesh has after the 14th day of April 1957 but before 25th day of March 1971 left or has been displaced from his place of residence in such area and who has since then been residing in India। जैसे हमने देखा भारत और पाकिस्तान में कुछ दंगे हुए हो, कुछ प्रॉब्लम्स बनी हो, तब कोई व्यक्ति पाकिस्तान के एरिया से इंडिया में आके रह रहा हो उस व्यक्ति को हम डिस्प्लेस पर्सन कहते हैं। वैसे ही अगर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कहीं तनाव निर्माण हुआ हो
या बांग्लादेश में ही कोई तनाव निर्माण हुआ हो और वो व्यक्ति उस डर से उनका जो रहने वाला एरिया है वो छोड़ के इंडिया में आया हो, तो उस व्यक्ति को हम डिस्प्लेस पर्सन कहेंगे। जब बांग्लादेश की बात आएगी तो आपने ये डेट ध्यान में रखनी है, आफ्टर 14th April 1957 बट बिफोर 25 March 1971 जो व्यक्ति बांग्लादेश से भारत में आया हो उस व्यक्ति को हम डिस्प्लेस पर्सन कहेंगे। रिपैट्रिएट इसे हम देश प्रत्यावर्तित व्यक्ति भी कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, रिपैट्रिएट जब भी डेफिनेशन आएगी आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये वर्ड लिखना ही है। ओके, इसके डेफिनेशन देखते हैं। एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who, on account of civil disturbances in area now forming part of Burma, Sri Lanka or Uganda or any country, has, after the 14th day of April 1957, left or has been displaced from his place of residence in such area and who has since then been residing in India. रिपैट्रिएट वो व्यक्ति होता है जो इंडियन ओरिजिन का है, दूसरे देश में जाके रह रहा था, वहां पे कोई दंगे हुए, कोई प्रॉब्लम्स बनी, तब वो बर्मा, श्रीलंका, युगांडा या कोई दूसरी कंट्री हो वहां से उसने स्थलांतरित किया और वापस भारत में आके रह रहे हैं, उस व्यक्ति को हम रिपैट्रिएट कहेंगे। रिपैट्रिएट के लिए डेट ध्यान में रखिएगा, आफ्टर 14th day of April 1957। कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो बांग्लादेश की डिस्प्लेस पर्सन की जो डेट है वही डेट आपने रिपैट्रिएट को लिखनी है, वो है आफ्टर 14th day of April 1957। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसे हम यूजीसी भी कहते हैं, इट मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 4। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सेक्शन 4 के तहत बनाई गई है ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। अब हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट establishes a Pharmacy Council of India under Section 3 of Chapter 1 of Pharmacy Act 1948. There are three different members that you need to keep in mind. First one, elected members, next are nominated members, and third are ex officio members. You will be dealing with elected members now. First one is 6 members, among whom there shall at least be one teacher of each of subjects pharmaceutical chemistry, pharmacy, pharmacology, and pharmacognosy, elected by UGC। ध्यान रखिएगा, इन जो टीचर्स हैं इन्हें UGC इलेक्ट करती है। फ्रॉम among persons of the teaching staff of an Indian university or a college affiliated thereto, which grants degree or diploma in pharmacy. One member elected by members of Medical Council of India amongst themselves. One member from each state elected by members of each state council amongst themselves shall be a registered pharmacist. इसे ध्यान में रखने के लिए हम ऐसे रख सकते हैं, पहला है 6 टीचर्स, दूसरा 1 मेडिकल काउंसिल, तीसरा 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम ईच स्टेट। अब बात करेंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स की। नॉमिनेटेड मेंबर्स में सबसे पहले आते हैं 6 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो 6 मेंबर्स जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है, ऑफ whom at least 4 shall be possessing degree or diploma in pharmacy and practicing pharmacy or pharmaceutical chemistry। 6 मेंबर्स जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है उनमें से कम 4 मेंबर्स ने डिग्री या तो डिप्लोमा फार्मेसी में किया होना चाहिए और वो फार्मेसी प्रोफेशन का कोई भी बिजनेस रहे,
कोई बाकी प्रोफेशनल पार्ट रहे वो कैरी आउट करता रहे। अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हम यूजीसी कहते हैं, एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसे हम AICTE कहते हैं। One member from each state nominated by state government shall be a registered pharmacist. हर एक स्टेट से जैसे इलेक्टेड मेंबर था वैसे ही नॉमिनेटेड मेंबर रहेगा जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रहेगा। ध्यान में रखने के लिए 6/4 डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी, 1 UGC, 1 AICTE, 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अब बात करते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की। सबसे पहले आते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, नेक्स्ट ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, थर्ड डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। इसे ध्यान में रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस को हम DGHS कहेंगे, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को DCI कहेंगे, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को DCDL कहेंगे। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL और उसका डायरेक्टर तो DCDL, ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं उनके फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। पहला फंक्शन आता है टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट। किसी व्यक्ति को अगर फार्मासिस्ट करके क्वालिफाई होना हो तो उसके लिए एक मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सेट किया है। वो एजुकेशनल स्टैंडर्ड आपको एजुकेशन रेगुलेशन के तौर पे दिया जाता है। वो एजुकेशन रेगुलेशन, ये वर्ड आपने आपके टेक्स्ट बुक में देखा है। जैसे ही आप आपके टेक्स्ट बुक ओपन करते हो आपको सामने दिखता है एज पर ER 1991 या कोई ऐसा एजुकेशन रेगुलेशन हो। ER का मतलब है एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेशन एक्चुअली आपको सिलेबस सेट करके देता है, आपको कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं वो सेट करके देता है, आपको किस ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कैसे उसकी एग्जाम कंडक्ट होगी, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, वो सब चीज़ें आपको एजुकेशन रेगुलेशन में मिल जाती है। उसकी वजह से हम पहला फंक्शन जो कंसिडर करते हैं टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट, वहाँ पे आपने एजुकेशन रेगुलेशन ये वर्ड ऐड करना है। नेक्स्ट आता है टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड। अब एजुकेशन रेगुलेशन तो बन गया, आपको सिलेबस पता चल गया, बस आपको पता करना है कि एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो सही से रेगुलेट हो रहा है या नहीं। इसके लिए PCI ने इंस्पेक्टर्स रखे जो हर कॉलेज में जाके वो कॉलेज का इंस्पेक्शन करते हैं, कॉलेज के जो नॉर्म्स है PCI ने सेट किए वो फुलफिल करते हैं या नहीं वो देखा जाता है, और उसके बाद कॉलेज को अप्रूवल मिलता है, जिसे हम PCI अप्रूव्ड कॉलेज भी कहते हैं। जब PCI का अप्रूवल मिलता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये कॉलेज में PCI के तहत जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारे रिक्वायरमेंट्स ये कॉलेज ने फुलफिल किए हैं और यहाँ पे एजुकेशनल स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू ER चल रहा है। थर्ड फंक्शन आता है टू रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड टेरिटरी। जैसे हम जानते हैं फार्मेसी एक्ट जो था 1948 में एस्टेब्लिश किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। वो एक्ट कई एरियाज में उस दौरान पहुंचा नहीं था, तो जैसे ही कोई एरिया में अगर फार्मेसी एक्ट नहीं पहुंचा है तो वहां पे जो व्यक्ति फार्मेसी प्रोफेशन का एजुकेशन ले रहा हो तो उसका क्वालिफिकेशन कंसिडर करना भी फार्मेसी काउंसिल का फंक्शन था। टू कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। अब जैसे फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे क्वालिफिकेशन हो गया फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करने जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद उस रजिस्टर को कंपाइल करना और मेंटेन करना ये भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन है। आखिरी आता है कोई और फंक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट असाइन करे, वो फंक्शन भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कैरी आउट करना है। तो ये रहा आपका फार्मेसी एक्ट का पहला सेशन। अगले सेशन में हम एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टेट और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।